دیا, جس نے سمندر کو بہلا دیا, سمندر بہ پڑے, ہواؤں کو چلا دیا, پہاڑوں کو جس رب لم یزل نے زمینوں میں گاڑ دیا. رب کے قرآن کی مختلف آیات آپ حضرات کے سامنے سنتے رہتے ہیں, اور آپ حضرات اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ رب کائنات نے جس طرح اس روئے زمین والوں کے لیے آسمانوں کو بلند و بالا کر دیا, زمین کو بچھا دیا, ہواؤں کو مسخر کر دیا, دریاؤں کو بہا دیا. میرے پیارے بھائیوں, توجہ اس طرف رکھیے گا, رب لم یزل نے اس روئے زمین پر حضرت آدم کو بھی بھیجا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بھیجا, حضرت یعقوب و ایوب و یوسف علیہم السلام کو بھی بھیجا, حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو بھی بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا. لیکن میرے پیارے بھائیوں, آدم کی جو صفیت تھی وہ بھی میرے رب نے میرے نبی کو دے دی. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے. میرے پیارے بھائیوں, ابراہیم کی جو خلیلیت تھی میرے رب نے وہ بھی اپنے محبوب کو دے دی. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے. میرے پیارے بھائیوں, رب نے اپنے موسیٰ جو کلیم اللہ کہلائے, ان کے ید بیضا سمیت ان کے جلالیت رب نے میرے محبوب کو دے دی. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے. میرے پیارے بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعا مانگنے کا انداز ہی نرالا تھا, رب نے وہ بھی اپنے محبوب کو عطا کر دیا. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے. میرے پیارے بھائیوں, حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی محنت یہ بھی میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو دے دی. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے. میرے پیارے بھائیوں, رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کو دے دیا. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے. میرے رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز جس سے پرندے رک جاتے, خوبصورت آواز جس سے سمندر کی مچھلیاں ابل پڑتی, خوبصورت آواز جس سے ہوا رک جاتے, یہی تو میرے نبی کو عطا کر دیا. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے. میرے رب نے تمام نبی کی প্রধান অতিথির আগমন, পীর সাহেব হুজুরের আগমন, আহলান সাহলান, হে অতিথি হে মেহমান, সিলেটবাসীর পক্ষ থেকে লৌ সালাম শুভেচ্ছা. খতম নবুয়ত সম্মেলন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবীর. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এদেশের লক্ষ লক্ষ তৌহিদি জনতার আধ্যাত্মিক রাহবর, খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশের মুহতারাম আমির হযরত মাওলানা আব্দুল হামিদ পীর সাহেব মধুপুরী। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আরো দেশবরণ্য উলামা ইকরাম। আমরা স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মেহেরবানি করে আপনারা মেহমানদেরকে বসান। বিভিন্ন মাদ্রাসা ছাত্র ভাইদেরকে আমরা বলবো, আজকের এই মহাসম্মেলনের সৌন্দর্য রক্ষা করা এটা আপনাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। মহাসম্মেলনে আগত বিভিন্ন মাদ্রাসা ছাত্র ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মেহেরবানি করে আপনারা বসে পড়ুন। আপনারা মেহেরবানি করে বসে পড়ুন, ছাত্র ভাইরা আপনারা বসে পড়ুন। भाई तवज्जो इस तरफ रखिएगा, टाइम बहुत मुख्तसर है और आपको मालूम है हम लोग सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जाते। तवज्जो इस तरफ, कोई भी इधर उधर ना देखे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे ये कह रहा था, आदम की सफियत भी मेरे नबी को अता कर दी गई, हजरत मूसा की जलालियत भी मेरे नबी को अता कर दिया गया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
खूबसूरत आवाज भी मेरे नबी को अता कर दी गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत आवाज की तरह किसी की आवाज न थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती की तरह किसी की खूबसूरत न थी। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत भी मेरे नबी को अता कर दी गई। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारो, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कि जिंदाओं को, जो मुर्दे को जिंदा कर दिया करते, जिनकी आवाज से सारे रोए जमीन यकजा हो जाते, यही तो मेरे मुस्तफ़ा को अता कर दिया गया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसकी खल्कियत, जिसकी पैदाइश मेरे रब ने मक्का की सरजमीन में कर दिया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसको पाकीज़ा सरजमीन मेरे रब ने मदीना मुनव्वरा जैसी सरजमीन अता कर दी। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके किताब का वादा, जिसको कलामुल्लाह जैसी किताब फुरकान हमीद कुरान मजीद अता कर दी गई, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे लम यज़ल ने क़यामत तलक ले ली। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसको अबू बकर जैसा सदाकत अता कर दिया, उमर जैसा अदालत अता कर दिया, उस्मान जैसा सखावत अता कर दिया, हैदर जैसा शुजाअत अता कर दिया, अब्दुल रहमान जैसा बसारत अता कर दी, साद बिन अबी वक़ास जैसी बसीरत अता कर दी, अब्दुल्ला बिन मसऊद जैसे जहानत अता कर दिया, हजरत तलहा जैसे जसारत अता कर दिया। जिसको मेरे रब ने, यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसको मेरे रब ने मेराज आसमानों पर करवा दिए। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके नवासों को मेरे नबी ने कह दिया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसकी बेटी को मेरे रब ने सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना कह दिया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जब कौम वालों को पानी कम पड़ जाता, मेरे नबी उंगलियां ऐसे करते, रब उंगलियों से पानी के फुवारे जारी कर देते। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके दूध के एक प्याले से पूरी कौम सैराब हो जाती। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके एक तीर के अंदाज से कुफ्फार मुशरिकीन हलाक व बर्बाद हो जाते। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर अबू बकर आमन्ना वसल्लमना कह दे। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके क़ूलू अला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर उमर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, उस्मान भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अली भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अबू हुरैरा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अब्दुल्ला बिन मसऊद भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अब्दुल्ला बिन उमर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अबू हुरैरा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अब्दुल्ला बिन मसऊद उमर सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके लिए औरतों में हजरत सुमैया पहले इस्लाम में शहीदा होने वाली कलमा पढ़ दे मगर कलमा ना छोड़े। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके लिए बिलाल हबशी को तपती धूप पर लिटाया जाए, उन पर जुल्म सितम ढाया जाए मगर वो कलमा ना छोड़े। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके लिए नबी अर्श वालों को उसके मातहत कर दे, जिसके लिए नबी को मेरे रब आसमानों पर मुलाकात के लिए बुलाए। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके मेरे नबी प्यारी नमाज जैसी नेमत अता कर दे। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके लिए मेरे रब ये कर दे क़यामत तलक जहाँ रब का नाम होगा वहाँ मुस्तफ़ा का नाम होगा, जहाँ तलक रब की खुदाई है वहाँ तलक रब की प्यारे महबूब की मुस्तफ़ाई है, जिसके बारे में रब ये कह दे मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आप रहमतल लिल आलमीन है। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है ओ मेरे प्यारे भाइयों जिसके लिए सहाबा किराम करबाल लुटा दे, जिसके लिए सहाबा किराम बच्चों को यतीम कर दे, जिसके लिए सहाबा किराम बीवियों को बेवा कर दे। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम भी उस नबी के गुलाम होकर इस गर्दन को कटवा कर उन सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। मुस्तफा तुम्हारा नबी हमारा नबी
বিশ্ব নবী তোমার নবী আমার নবী। मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे नबी का मकाम मुस्तफा कैसे मिला? रब के कुरान ने, तवज्जो करना, रब के कुरान ने पहले ही मेरे मुस्तफा से वादा कर लिया, जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मेरे प्यारो, वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं सिर्फ आप हजरात को सामने मुख्तसरन बात समेट रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, रब के कुरान ने जो कह दिया उस पर हमारा ईमान है, उस पर हमारा यकीन है। मेरे प्यारे भाइयों, रब ने ये साबित कर दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिरौन के मुकाबले में आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी रहे, फिरौन गरक हो गया, यानी हक बाकी रहा मगर बातिल मिट गया। मेरे प्यारे भाइयों, रब ने दिखा दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नसारा ने कोशिश करी फांसी देने की, रब ने उनको आसमानों पर उठा लिया और फिर सारे जहां को दिखा दिया कि हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दहकती हुई आग में फेंक दिया, रब ने उनको बचा दिया, रब ने दिखा दिया हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। मेरे प्यारे भाइयों, कुफ्फार मुशरिकीन ने बड़ी कोशिशें करी, सहाबा किराम को शहीद भी कर दिया कि ये दीन इस्लाम ना पहुंचे, लेकिन दुनिया ने देखा कि हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। और मेरे प्यारे भाइयों, और आगे चलते हैं, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इन अंग्रेजों ने, इन कांग्रेसों ने मुसलमानों को दबाना चाहा, तो हजरत हुसैन अहमद मदनी, कासिम नानोतवी, हजरत गंगोही जैसे सिपाही सालारों ने अंग्रेजों का मुकाबला करा। दुनिया ने देखा कि अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए, हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। मेरे प्यारे भाइयों, रूस और अमेरिका ने अफगानिस्तान को मिटाने की कोशिश करी, लेकिन दुनिया ने देखा हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। और बांग्लादेश के नौजवानों, तुमने तो अपनी आंखों से देखा कि 5 अगस्त वाले दिन बातिल ने 2013 में भी उलमा किराम के खून बहाए, बातिलों ने दिखा दिया 2021-22 को उलमा किराम को कैद में बंद करके उन्होंने चाहा कि बातिल बाकी रहे, हक मिट जाए, लेकिन दुनिया वालों ने देखा, अरब ने भी देखा, अजम ने भी देखा, अमेरिका ने भी देखा, यूरोप ने भी देखा, हिंदुस्तान ने भी देखा, पाकिस्तान ने भी देखा कि 5 अगस्त को इन नौजवानों ने बातिल को जूते मार मार के भगा दिया और हक बाकी रहा। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी बात, यह सारी बात बताने का मतलब क्या है? हजरत मौदूपुरी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया मौजूद है। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी किस्सा सुन लिया, हजरत साहब से मजीद सुनते रहेंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात कह रहा हूं, लास्ट बात, शेष बात, वो क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, सरजमीन पाकिस्तान में जब कादियानियों ने अपना सर बुलंद करा, सारे कादियानी उरूज पर आ गए। सन 1973 यानी 1973 उस वक्त में उलमा किराम ने आवाज लगाई, आ जाओ लोगों, मसला खत्म नबूवत पर इकट्ठा होने का वक्त आ गया। यानी कादियानियों को संसद के आइन के मुताबिक, असेंबली के आइन के मुताबिक काफिर करार दिया जाए। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों से ये बिल पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के संसद के आइन के मुताबिक इन कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया। मगर मेरे प्यारे भाइयों, जब लोग छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, 4 ईयर ओल्ड से लेकर ओल्ड एज होम तक, सारे लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, मुफ्तियाने किराम, उलमा किराम, मशाइख इज़ाम, शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, सारे जब उस मैदान में आए, उन लोगों ने गोलियां चलाई। क्या चलाई? गोलियां बरसाई। छोटे मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया, बड़े बूढ़ों को भी शहीद कर दिया। लेकिन दुनिया ने देखा ये लोग कट गए, ये लोग मर गए, मगर संसद के आइन के मुताबिक इस बिल को पास करा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे अंदर ही हजरत गंगोही का खून है, तुम्हारे अंदर ही हजरत
मकसद है। अब नंबर बांग्लादेश का है। हम पीर मोदूपुरी साहब को इस बात पर तमाम लोग मुतवज्जा करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब बांग्लादेश की सरजमीन पर आप जब भी हमें कादियानियों को संसद के आइन के मुताबिक काफिर करार देने के लिए हमें बुलाएंगे, हम लोग भी सरों पर कफन बांधे लब्बैक कहते हुए इस गर्दन को कटाकर ये बिल पास कराएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अब हाथों को उठाओ और बोलो, गोली से डरोगे तो नहीं, जेल से डरोगे तो नहीं, अपनी जान कुर्बान कर दोगे इंशाअल्लाह, घरों को कुर्बान कर दोगे इंशाअल्लाह। हम साहब बताना चाहते हैं दुनिया वालों को, मेरे नबी की नामूस पर ये गर्दन कट जाएगी, लेकिन खत्मे नबूवत पर एक बाल के बराबर भी कोई आस नहीं आने देंगे। تكبير كافر كافر قد يبي كافر قد يبي نرفتنا بنگلادیش سے تک بنا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تکبیر آپ یہ আমির মজলিস এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে اب یہ ہم پیغام آخری یہ دینا چاہتے ہیں کہ سارے سرزمین بنگلہ سے ہم نے ساری گندگی کو بھگا دیا، ساری گندگی بنگلہ دیش سے ختم۔ اب جو بھی باطل اس سرزمین میں قدم رکھے گا، دنیا والوں کو معلوم ہے کہ ہم ایسے باطل کو چوٹی سے مار مار کر بھگا دیں گے۔ تو میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ؟ حضرت مودودپوری صاحب کے اس مشن کو آگے لے کے چلو گے انشاءاللہ؟ سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ۔ نوبیر پورے، آواز سے بولو، نوبیر پورے، شنشد شہادت کی تمنا سب کرتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک۔ جزاکم اللہ خیر، زندگی باقی ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ সম্মানিত হাজিরিন, অত্যন্ত গুরুত্ব